آج ویو 360 میں دنیا بھر میں 4.5 کروڑ سے زائد افراد اپنے ہی ملکوں میں بے گھر۔ کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ سمیت دنیا کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینا مشکل۔ اور کووڈ-19 کی عالمی لڑائی میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ٹیکنالوجی کی نئی ایجادات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ہر سال 20 جون کو پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے گھروں سے اپنی ہی مرضی کے خلاف دربدر ہیں۔ دنیا کی تقریباً 7.5 کروڑ آبادی، جو کہ سعودی عرب اور عراق کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے، اس وقت پناہ گزینی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان میں سے 4 کروڑ 57 لاکھ IDPs یعنی اپنے ہی ملکوں میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق نہ صرف ریکارڈ تعداد میں افراد جبری بے گھر ہو رہے ہیں، بلکہ انہیں پناہ دینے والے ملکوں میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ UNHCR کی گلوبل ٹرینڈ رپورٹ کے مطابق 2010 میں جبری بے گھر ہونے والوں کی تعداد 4 کروڑ 10 لاکھ تھی، جو اب دگنی ہو کر 7 کروڑ 95 لاکھ ہو گئی ہے۔ ان افراد میں سے 85% کا تعلق ایسے ترقی پذیر ممالک سے ہے جہاں غذا کی شدید قلت ہے۔ ان دربدر ہونے والوں میں سے بہت سے اپنے ہی ملکوں کے اندر پناہ گزین بن جاتے ہیں، جبکہ کم از کم 2 کروڑ 96 لاکھ دوسرے ممالک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جن نامساعد حالات کی وجہ سے یہ افراد اپنے ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہوتے ہیں، وہ حالات بھی جلد معمول پر نہیں آتے، جس کی وجہ سے اب کم بے گھر پناہ گزین ہی اپنے ملکوں کو واپس لوٹ پا رہے ہیں۔ ایجنسی کی گلوبل ٹرینڈز رپورٹ کے مطابق 90 کی دہائی میں ہر سال اوسطاً 15 لاکھ بے گھر افراد اپنے ملکوں کو واپس لوٹ رہے تھے، لیکن گزشتہ دہائی میں یہ تعداد 4 لاکھ سے بھی کم ہے۔ اسد اس رپورٹ میں ایک اور اہم پہلو کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ بے گھر ہونے والے افراد کی کل تعداد کا 40% بچے ہیں، جن میں سے اکثر اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ 80 کی دہائی سے اب تک پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان شہریوں کی ایک نسل پاکستان میں جوان ہوئی اور شاید اپنے آبائی گھروں کا پتہ بھی نہیں جانتی، لیکن ان میں سے کئی مہاجرین کے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا۔ مرتضی ظاہری ہمیں مزار شریف سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بسنے والے ایک پناہ گزین کے حالات زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عنایت اللہ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا اینٹوں کے بٹے پر محنت کرنے کے بجائے اسکول میں پڑھے، لیکن حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ عنایت اللہ 20 سال قبل افغانستان کے ایک جنگ زدہ علاقے مزار شریف سے پاکستان آئے اور بلوچستان کے علاقے پشین میں آباد ہو گئے۔ یہاں نہ تو افغان پناہ گزینوں کے لیے کوئی اسکول ہے اور نہ ہی عنایت اللہ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنے بیٹے کے تعلیم کے اخراجات اٹھا سکیں۔ دوسرا کام ہمارا پیسہ نہیں، دوسرا کام کرو، بس یہ بٹے میں پیش کے لیتا ہوں، ایسے کام کرتا ہوں، اپنے گھر والے سے بس گزارا کر سکتا ہوں۔ ہمارا بچہ ہے نا، ہمارا دل ہوتا ہے اسکول میں رکھنے کے، اور ہمارا وقت نہیں ہوتا ہے۔ پشین میں اینٹوں کے بٹے پر کئی افغان پناہ گزینوں کے بچے دن بھر محنت مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں موجود تقریباً 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزین میں سے 3,25,000 بلوچستان میں آباد ہیں۔ یہاں افغان پناہ گزین کیمپوں میں تعلیم کے ساتھ طبی سہولیات کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ دور دور تک کوئی بنیادی صحت کا مرکز نہیں۔ 15 سال سے میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤں؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، دوسرا بچہ نہیں ہے۔ ہم بھٹا مالک کے مقروض ہیں۔ میں خود بھی اپنے شوہر کے ساتھ بھٹے میں اینٹوں کا کام کرتی ہوں۔ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزین افغانستان میں غیر مستحکم صورتحال کے سبب وطن واپس لوٹنا نہیں چاہتے، لیکن وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات ملنی چاہیے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی فلاح و بہبود پر خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ہم جو ہے مختلف شعبوں پہ ہماری توجہ ہے، جس طرح کہ صحت ہے، تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے لائیولی ہوڈ ہے۔ پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے تقریباً کوئی 40-45 ملین ڈالر جو ہے وہ اس شعبے میں خرچ کیے ہیں۔
UNHCR ने हाल ही में पाकिस्तान और ईरान में मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए सोल्यूशन स्ट्रेटजी फॉर अफगान रेफ्यूजीज के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज किया है। ये एक सपोर्टिंग प्रोग्राम है जिसके तहत आलमी सतह पर फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस इक़दाम से अफगान पनाह गुज़ीन कैंपों में तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी की तवक्को की जा रही है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, पशीन, बलूचिस्तान। अपने आबाई मुल्कों में मुश्किल हालात से भागकर और जान बचाकर अमेरिका में पनाह लेने वालों के लिए कोरोना की वबा ने यहाँ उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत को मजीद मुश्किल बना दिया है। इन पनाह गुज़ीनों को अमेरिका में आबाद होने में मदद देने वाले गैर सरकारी इदारों का काम मजीद पेचीदा हो गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में अमरीकी हुकूमत के लिए काम करने के बायस महमूद अमीरी को डर था कि कहीं तालिबान उन्हें और उनके खानदान को नुकसान न पहुंचा दे। उन्हें अमरीकी हुकूमत की मदद करने वाले अफगान और इराकियों के लिए मखसूस वीजे पर अमरीका में पनाह मिली और बिलाखिर वो मार्च के महीने में अपनी बीवी और 4 बच्चों के हमरा अमरीकी रियासत यूटा मुंतकिल हुए। लेकिन लॉकडाउन के बायस ना ही उनके बच्चे स्कूल जा पाए, ना ही वो कम्युनिटी के लोगों से घुले मिले और ना ही उन्हें अभी तक कोई नौकरी मिल सकी है। जब हमें वीजा मिला तो उस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल चुका था और सूरत हाल बहुत खराब थी। अमेरिका में बहुत से सरकारी इदारे और गैर मुनाफा बख्श तंजीमें नए पनाह गुज़ीनों को एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद देती हैं। ताहम कोविड की वबा के बायस इनका काम भी मुतासिर हुआ है। दस्तावेज हासिल करना जैसा कि शनाख्ती कार्ड, जरूरी मालूमात हासिल करना। हम उन पनाह गुज़ीनों को तमाम जरूरी सर्विसेज मुहैया करते हैं। ताहम इस वक्त हम दफ्तरों से दूर बैठकर ये सब कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें अमली तौर पर दिखाए बगैर समझाना मुश्किल है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे इस्तेमाल करनी है, डॉक्टर्स के पास कैसे जाना है और सौदा सल्फ लेने कैसे जाना है। अमेरिका में पनाह हासिल करना पिछले साल उस वक्त से और भी चैलेंजिंग हो गया था जब अमेरिकी वफाकी हुकूमत ने नए पनाह गुज़ीनों की तादाद में कमी करते हुए उनकी आबादकारी के लिए वफाकी फंडिंग भी रोक दी थी। यही नहीं, इस साल मार्च में कोरोना के खदशे के पेश नज़र पनाह गुज़ीनों की अमेरिका में आबादकारी और उनकी पनाह की दरख्वास्तों पर भी काम को रोक दिया गया था। पनाहगुज़ी खानदानों की मदद के लिए कायम एक गैर मुनाफा बख्श इदारे मोज़ेक का कहना है कि कोविड का बहरान शुरू होने के बाद से उनका काम कई गुना बढ़ गया है। हमारे काम करने के औकात पहले से बढ़ गए हैं। कभी कभी हम दिन में 18 घंटों तक काम करते हैं। बहुत से लोग कोविड-19 की सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। बहुत से लोग अपना कारोबार खो चुके हैं, इसलिए लोगों को अब माली मदद की ज्यादा जरूरत है। हमारे पास 200 खानदान आते थे, लेकिन अब हम कोविड-19 के दौरान तकरीबन 300 खानदानों की मदद कर रहे हैं। रगत बोशनाक का कहना है कि उनके पास शाम, इराक, अफगानिस्तान, सूडान और सोमालिया से पनाहगुज़ीन खानदान आते हैं, जिन्हें माली इमदाद, खुराक और हाइजीन का सामान मुहैया किया जा रहा है। अमेरिका में 2 तरह के पनाहगुज़ीन आते हैं। एक वो जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा लाती है, उन्हें माली मदद दी जाती है, उन्हें राशन कार्ड मिलता है, उन्हें तिबी सहूलतें दस्तयाब होती हैं, उनके पास वर्क परमिट होता है। लेकिन एक वो हैं जो खुद आते हैं और फिर वो अपने मुल्क में नामसाइब हालात की वजह से वापस नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें रुकने के लिए बहुत सी दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं। उन्हें हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिलता। लेकिन कोविड-19 के दौरान अब हम दोनों तरह के पनाहगुज़ीनों की मदद कर रहे हैं। अमेरिका में आने वाले पनाहगुज़ीनों का रिकॉर्ड रखने वाले इदारे रेफ्यूजी प्रोसेसिंग सेंटर के मुताबिक कोरोना की वबा के बावजूद इस साल जनवरी से जून के महीने तक अमेरिका में तकरीबन 4,500 पनाहगुज़ीन दाखिल हुए हैं और तवक्को की जा रही है कि इस साल 18,000 तक पनाहगुज़ीन इस मुल्क में दाखिल होंगे। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अगर हम कोरोना वायरस के फैलाव से पहले के हालात का जायजा लें तो पिछले चंद सालों में अमेरिका में बनाए गए नए इमिग्रेशन रूल्स की वजह से अमेरिका में आने वाले मुहाजिरीन और पनाहगुज़ीनों की तादाद कम हुई है। लेकिन अमेरिका के बहुत से छोटे बड़े शहरों में मुख्तलिफ ममालिक के तारकीन वतन और पनाहगुज़ीनों की कामयाबी की मिसालें भी मौजूद हैं। इनमें रियासत न्यू जर्सी का एक छोटा सा शहर प्रॉस्पेक्ट पार्क भी शामिल है। आइए चलते हैं सबा शाह खान के साथ प्रॉस्पेक्ट पार्क। कई सालों से जारी खाना जंगी ने शाम के शहरियों की बड़ी तादाद को अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर किया है। इस वक्त दुनिया में शामी महाजरीन की तादाद सबसे ज्यादा है। अलेप्पो शाम का वो तारीखी शहर है जहां शाम की तारीख की शायद सबसे खूनी जंग लड़ी गई, जिसमें हजारों मासूम शहरी मारे गए। शाम के शहर अलेप्पो से ताल्लुक रखने वाले मेयर खैरुल्लाह को बचपन में अपना घर छोड़ना पड़ा।
یہی وجہ ہے کہ جب 2017 میں صدر ٹرمپ نے ایک ایسے صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے جو پناہ گزینوں کے داخلے کو محدود کر رہا تھا، میئر خیر اللہ کو لگا انہیں کچھ کرنا چاہیے۔ صدارتی حکم نامے کے اگلے ہی ہفتے میئر خیر اللہ نے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس کے تحت پراسپیکٹ پارک شہر کو سینکچری قرار دیا گیا، یعنی یہ شہر بھی ان امریکی شہروں میں شامل ہو گیا جو پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا ہی کیوں ہونے دیتے ہیں، جنگوں کو کیوں نہیں روکتے، ہم آمروں کو اپنی عوام کو مارنے سے کیوں نہیں روکتے تاکہ انہیں بھاگنا نہ پڑے۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ آمروں کو ان کے لوگوں کو مارنے اور ان کے لوگوں کے بھاگنے کی وجہ بننے سے نہیں روک سکتے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پناہ گزینوں کو لیں۔ محمد خیر اللہ پچھلے 13 سال سے پراسپیکٹ پارک کے میئر کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس امریکی شہر میں اپنے کیریئر کا آغاز ایک فائر فائٹر کے طور پر کیا تھا۔ میں نے میونسپلٹی میں رضاکار فائر مین بننے کی درخواست دی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ امریکی شہری نہیں ہیں۔ لیکن پھر چیف نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، اور انہوں نے میئر سے بات کی اور انہوں نے مقامی قوانین کو تبدیل کر دیا۔ تو میرے نزدیک ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو مشرق وسطی سے آیا تھا جہاں ہر چیز کی طاقت مرکز میں ہے، حیران کن تھا کہ آپ مقامی سطح پر قوانین تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یوں مجھے مقامی حکومت کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1 میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے پراسپیکٹ پارک کو ڈچ تارکین وطن نے 1901 میں آباد کیا تھا۔ آج یہاں کی 15% آبادی مسلمان ہے، جن کی اکثریت عرب اور جنوبی ایشیائی ہیں۔ As an immigrant, a refugee is just like any other immigrant. When they come in hungry. تو پناہ گزین دوسرے تارکین وطن ہی کی مانند کامیابی کے بھوکے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پہنچ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، وہ کاروبار شروع کرتے ہیں، ان کے بچے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ امریکہ کی قدر میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم پراسپیکٹ پارک میں ایک متنوع ماحول میں کام کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے مختلف پس منظر کے لوگ ہیں اور میئر پراسپیکٹ پارک میں موجود تمام مختلف کمیونٹیز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور جب کووڈ کے دنوں میں یہاں کے مقامی بزنسز پریشانی کا شکار ہوئے، انہوں نے خود جا کر بہت سے دروازے کھٹکھٹائے اور لوگوں کو مقامی بزنسز استعمال کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان حالات میں اپنا وجود برقرار رکھ سکیں۔ وہ کہتے ہیں پناہ گزینوں کی مشکلات کا اندازہ ٹی وی یا تصویریں دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود ادویات اور دوسرا امدادی سامان لے کر شمالی شام اور بنگلہ دیش کے روہنگا کیمپوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، پراسپیکٹ پارک، نیو جرسی۔ کورونا وائرس سے متعلق اپڈیٹ جاننے اور دنیا جہان کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ گزشتہ ماہ 25 مئی کو امریکی ریاست مینیسوٹا میں سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت سے منظم نسل پرستی کے مسئلے پر زور و شور سے بحث کا آغاز ہوا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، اس بارے میں بحث شروع ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ نسل پرستی پر قابو پانے کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جارج فلوئڈ کی موت سے امریکہ میں ہونے والے مظاہروں کے بیچ واشنگٹن میں نیشنل میوزیم آف افریقن امریکن ہسٹری اینڈ کلچر نے ٹاکنگ اباؤٹ ریس کے نام سے ایک تعلیمی ویب پورٹل لانچ کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ ناظرین کو امریکی معاشرے میں نسل پرستی اور نسل سے متعلق معلومات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس پورٹل میں نسل پرستی کی ایک مختصر تاریخ دی گئی ہے، خصوصاً امریکی تناظر میں۔ ہم لوگوں کو اس شناخت کے بارے میں سوچنے میں مدد دینا چاہتے ہیں جو نسل پرستی پر قائم کی گئی ہے۔ یہ ویب پورٹل میوزیم کے ملازمین کی کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے، جس میں تاریخ، سائنس اور نفسیات کے شعبوں میں کی گئی گہری تحقیق کو شامل کیا گیا ہے۔
is dangerous. खामोशी खतरनाक है। खामोशी एक पैगाम देती है जब नस्ल परस्ती पर बिल्कुल बात ही न की जाए, चाहे इसकी अहमियत को कम करके बात की जाए, ये जाहिर किया जाए कि ये मौजूद ही नहीं, या हम रंगों को नहीं पहचानते। खामोशी की इनमें से कोई भी शक्ल असल बहस को खत्म कर देती है। हमारी दुनिया में जो हो रहा है, ये खामोशी हमें उसे देखने, उसे समझने, उससे निमटने और हत्ता के इख्तलाफात को नजरअंदाज करके दूसरों से राब्ते बनाने की इजाजत भी नहीं देती। प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला मवाद न सिर्फ हकीकी मालूमात फराहम करता है बल्कि नस्ल परस्ती के मसले के हल की पेशकश भी करता है, जिसे अमरीकी जिंदगी के तकरीबन तमाम शोबों में देखा जा सकता है, मईशत और सियासत से लेकर सकाफत और तालीम तक। अक्सर सिर्फ एक जानिब का बयानिया होता है जो स्कूल सिस्टम में तलबा को बताया जाता है। ये बयानिया अक्सर सफेद फार्म मर्द के नुक्ता नजर से बयान किया जाता है। हम मुतअद्दिद नुक्ता नजर पेश करने की वकालत करते हैं। अफ्रीकी अमरीकी तारीख असल में अमरीकी तारीख है और यही अमेरिका की कहानी है। ताहम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के सिविल राइट्स प्रोजेक्ट्स के प्रोफेसर और को डायरेक्टर गैरी ओरफील्ड का कहना है कि ये मसला सिर्फ अमरीकी तालीमी निज़ाम के मवाद में ही नहीं बल्कि इसके निज़ाम में भी मौजूद है। 2006 में सिविल राइट्स प्रोजेक्ट्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अमरीकी तालीमी निज़ाम में पाई जाने वाली नस्ल परस्ती में 1960 के दहाई के मुकाबले में कोई ज्यादा बेहतरी नहीं आई। प्रोफेसर गैरी ओरफील्ड ने ही इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी। उनके मुताबिक 14 साल कबल इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद से सूरत हाल और संगीन हो गई है। बुनियादी तौर पर हमारे पास नस्ल और तबके के मसाइल हैं। सियाह फाम, लातीनी और नेटिव अमेरिकन तालिब इल्म ऐसे अमरीकी स्कूलों में पढ़ते हैं जिन्हें इंतहाई गुर्बत का सामना है। वहाँ कम तजर्बाकार असातिज़ा और महदूद निसाब है। इन स्कूलों में बच्चे कम ज़हीन और वालिदैन कम बाइख्तियार हैं। गैरी ओरफील्ड का ख्याल है कि नस्ली इम्तियाज चार्टर स्कूल्स कहलाने वाले उन प्राइवेट तालीमी इदारों की मकबूलियत की वजह से बढ़ा है जिन पर सरकारी स्कूलों की तरह नस्ल से कतई नजर हर तालिब इल्म को दाखिला देना लाजमी होता है। फिर उनके लिए शहरी कानून की क्लासें पढ़ाने भी लाजमी नहीं। 1960 और 70 की दहाई के अवाइल में स्कूलों को मरबूत करने और इब्तदाई माली वसाइल के जरिए उन्हें बेहतर बनाने और मुख्तलिफ नस्लों के तालिब इल्मों को बेहतरीन स्कूलों में लाने के लिए पॉलिसियां चल रही थी, लेकिन हमने बड़ी हद तक इस कोशिश को तर्क कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा कदामत पसंद बन गई है और स्कूलों के इजलाह को उनके अलग अलग होने के मंसूबों को तहलील करने की इजाजत दी गई है। गैरी ओरफील्ड ने मजीद कहा है कि स्कूलों को नस्ल परस्ती को खत्म करने के तरीक़ाकार पर वापस जाना जरूरी है जो मुल्क में शहरी हकूक की तहरीकों के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए थे और वालिदैन को अपने बच्चों के लिए स्कूल का इंतखाब करने दें। मैक्सिम मॉस्कोव के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद अमेरिका में सियाह फाम अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ पुलिस की जानिब से पुरतशद्दुद रवैये के बारे में मुजाहरे शुरू हुए ताकि अमेरिका और दुनिया भर की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ 1960 के बाद कई मशहूर फिल्मों ने भी पुलिस की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल और गलत रवैये और नस्ली नाइंसाफी पर नजर डाली है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। At any time during this evening, did it go through your mind that this was not a human being that you were beating? डैन लिंडसे और टी.जे. मार्टिन की बनाई दस्तावेजी फिल्म LA 92 लॉस एंजलिस में पुलिस के हाथों बुरी तरह पीटे जाने वाले रॉडनी किंग और फिर लॉस एंजलिस में शुरू होने वाले फसादात के बारे में है। So LA 92 सिर्फ रॉडनी किंग की कहानी नहीं बताती बल्कि उसमें लॉस एंजलिस के शहर में 20 साल पर मुहित उस पुलिस तशद्दुद और करप्शन का भी जिक्र है जिसकी वजह से LA 92 बनाई गई। It got us to LA 92. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story. ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम के दौरान दीगर दस्तावेजी फिल्मों में भी नस्ली नाइंसाफी को मौजू बनाया गया है। इन्हीं में से एक राउल पैक की फिल्म आई एम नॉट योर नीग्रो है जो बताती है कि अमेरिका में स्याह फाम होने का मतलब क्या है, और साथ ही एवा डुवर्ने की दस्तावेजी फिल्म 13 अमेरिका में स्याह फाम अमरीकियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों से मुतल्लिक है। फीचर फिल्मों में भी कई बार नस्ली नाइंसाफी को मौजू बनाया गया है जिसका सिलसिला 1960 की दहाई में शुरू हुआ। 2014 में एवा डुवर्ने की फिल्म सेल्मा रिलीज हुई। इस तारीखी फिल्म में 1965
ओबामा के शहर मंटगमरी से सेल्मा तक किए जाने वाले उस मार्च को दिखाया गया था जो वोट के हुकूक के लिए किया गया। इस मार्च की सरबराही डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, होज़े विलियम्स और जॉन लुइस कर रहे थे। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सिविल राइट्स तहरीक के रहनुमा जॉन लुइस ने सेल्मा और ब्लैक लाइव्स मैटर के दरमियान एक हम आहंगी पेश की। Today, I think the young people and those आज मेरे ख्याल से नौजवान और बड़े सब इस फिल्म से ये सीख सकते हैं कि हार नहीं माननी चाहिए, नफरत नहीं पालनी चाहिए, बल्कि जदोजहद जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की रूह को वापस पाना एक मसलसल जदोजहद है। to redeem the soul of America is an ongoing struggle. पेनेलोपी पोलू के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस के बायस लोगों के मामूलाते जिंदगी में जहां बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, वहीं टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिकी रियासत इलिनॉय की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में माहिरीन हेल्थ केयर के शोबे से मुंसलिक अफराद की सहूलत के लिए नई इजादात पर काम कर रहे हैं। ये इजादात हैं क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट से। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वसी और अरीज कैंपस के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की एक मोबाइल लेबोरेटरी में जोसेया हेस्टर कोविड-19 से निपटने के लिए नए आलात बनाने के लिए तजुर्बात कर रहे हैं। हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या जाती हिफाजत के लिए इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट आलात पर काम कर रहे हैं। मसलन मास्क में एक सेंसर लगा हो जो कोरोना वायरस की अलामात या थकावट का खोज लगा सके या ये बता सके कि आपने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं। जोजिया के लिए चैलेंज ये है कि एक ऐसा सेंसर बनाया जाए जो बैटरी के बगैर चले और जिसे कम लागत पर बरसों नहीं बल्कि महीनों में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सके। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की दूसरी जानिब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जॉन रॉजर्स और उनकी टीम अपनी लेबोरेटरी में सेंसर बनाने में मसरूफ हैं। जो आला हम तैयार कर रहे हैं वो बैंड एड की तरह का होगा, जिसे सिर्फ कलाई पर ही नहीं बल्कि जिस्म के किसी भी हिस्से पर रखा जा सकता है। मैंने ऐसा ही एक आला गले में पहना हुआ है। इब्तदाई तौर पर हमने इसे फॉलेज के मरीजों में खुराक निगलने के अमल का अंदाजा लगाने के लिए तैयार किया था। मगर जब कोरोना वायरस के सबब हेल्थ केयर वर्कर्स में तशवीश बढ़ी तो जॉन और उनकी टीम ने नए चैलेंजेस से निपटने के लिए इसमें तब्दीली का फैसला किया। इस आले को कोविड-19 की अलामात जैसे सांस में दुश्वारी और खांसी को जांचने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 हफ्तों से कम अरसे में उनकी टीम ने इस आले को तैयार किया और शिकागो में 2 अस्पतालों में लगाया, जहां कोरोना वायरस की अलामात के बारे में डाटा जमा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। जॉन कहते हैं कि इस आले की तलब में इजाफा हो रहा है। हम इस वक्त मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो इन आलात को अपने मुलाजमीन के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं ताकि उनके अमले की सेहत पर नजर रखी जा सके। इसलिए अगला चैलेंज इन आलात की बड़े पैमाने पर तैयारी है। इसीलिए हम कुछ नई कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं जो इन आलात को बड़े पैमाने पर लगाने में मदद देंगी, क्योंकि एहतियात की मदद से हमारे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेंसर का साइज छोटा करने पर काम करते हुए जोज़ाया को मालूम है कि वबा की सूरत हाल में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए उनका काम कितना अहम है। वो समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुस्तकबिल में बहुत से आलात तैयार किए जाएंगे जो कोरोना वायरस के बाद भी सेहत आमा के शोबे पर असरअंदाज होंगे। केन फराबाव के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।